الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بےتاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس وقت جو باتیں کہیں جائیں، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ اخیر چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ ایک حدیث شریف خطبے کے اندر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، ایمان والا مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جس شخص کے دل کے اندر آپ علیہ السلام کی محبت ہوگی، وہ آپ کی ادا سے بھی محبت کرے گا، آپ کے طریقے سے بھی محبت کرے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا۔ تاریخ اٹھا کر ہم جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر آپ علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری۔
सहाबा किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान, माल, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते थे और हर वक्त तैयार रहते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत जिस तरह सहाबा किराम ने की, दुनिया की कोई तारीख ऐसी मिसाल पेश कर ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला आप काफिले के साथ जा रहे हैं, किसी दूर जाकर आप अपने उस काफिले को रोकते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं। दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला क़ज़ाए हाजत कर रहे हो। थोड़ी देर आप वहां ठहरे, फिर आप वापस आ गए। काफिले वालों ने आपसे पूछा, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप क्यों रुके थे? आपने ना क़ज़ाए हाजत की है, खामखा आप यहाँ रुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु वो आशिक़ रसूल कि जिनके अंदर आपकी मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी, जिनको आपकी अदा से मोहब्बत थी, आपके तरीके से मोहब्बत थी, आपकी सुन्नत से मोहब्बत थी। आप फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा आका के साथ था, मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे, मैंने देखा कि आका थोड़ी देर यहाँ पर ठहरे थे, आपने यहाँ क़ज़ाए हाजत की थी। मेरा इत्मीनान नहीं आ रहा था, मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ज़ाए हाजत की थी, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल किया। ये कैसे दीवाने थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये ईमान वालों की मोहब्बत। मैं आपको एक जगह लेके चलता हूं, एक यहूदी का वाकया। एक यहूदी जो हर शनिचर को, हफ्ते को नहाता, कपड़े पहनता, खुशबू लगाता, जैसे हमारे यहाँ माशाअल्लाह जुमे का दिन होता है, आज जुमा है, हम नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, तेल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, इसी तरह वो यहूदी शनिचर के दिन नहाता, कपड़े पहनता, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता और फिर तौरात को खोलता। एक दिन का वाकया, वो यहूदी शनिचर के दिन नहाया, धोया, कपड़े पहने और तौरात को खोलकर बैठ गया। जिस तरह हमारे लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं, इस तरह यहूदी लोग शनिचर में तौरात पढ़ते हैं। अब वो यहूदी तौरात खोलकर जैसा बैठा, तौरात पढ़ रहा था। अब उसने तौरात के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम 4 जगह पर देखा। वो यहूदी हैरान हो जाता है कि ये किताब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी, लेकिन इस तौरात के अंदर इस मोहम्मद का नाम का क्या मतलब? वो हैरान होता है, उस जगह से आपके नाम को काटता है और फिर उसके बाद वहारा कहा उसको जला देता है। अगला शनिचर आता है, फिर वो नहाता है और फिर वो तौरात को लेकर बैठता है, तौरात की तिलावत करता है और फिर वो आपका नाम एक जगह नहीं देखता, वो आपका नाम 2 जगह नहीं देखता, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो यहूदी नाम 4 जगह पर नहीं 8 जगह पर देखता है। वो यहूदी हैरान हो जाता है, मैंने 4 जगह पर नाम देखा, मैंने चारों को काटा, मैंने अब 8 जगह पर नाम देखे हैं। आखिरकार ये तौरात तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है, इसमें मोहम्मद का नाम का क्या मतलब है? वो आपके चारों नामों को काटता है, वहारा कहा और फिर उनको जला देता है। अगला शनिचर आया, उसने नहाया और उसने नए कपड़े पहने, फिर तौरात को लेकर बैठा, तौरात की तिलावत करता रहा। आखिरकार उसने आपके नाम को 1-2 जगह पर नहीं देखा, 4 जगह पर नहीं देखा, 8 जगह पर नहीं देखा, बल्कि वो यहूदी आपके नाम को उस तौरात के अंदर 12 जगह पर देखता है। किताब को बंद करा और इधर बैठा, सोचने लगा, मैंने 4 जगह पर से फाड़े, अल्लाह ने 8 जगह पर दिए, मैंने 8 जगह पर से फाड़े, यहाँ 12 जगह पर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। आखिरकार लगता यह है कि इस नबी से अल्लाह को मोहब्बत बहुत है कि जिस नबी का नाम इतनी जगह पर है, अब अगर मैं 12 जगह से उस नबी का नाम फाड़ूं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तौरात उस नबी के नाम से भर जाए।
चुनांचे इसने किताब को बंद किया और ये शख्स बाहर निकला और एक ऐलान करता है, एक आवाज देता है, जैसा कोई दीवाना आवाज देता है, जैसा कोई पागल दीवाना आवाज देता है, कोई मजनू आवाज देता है, आईना मोहम्मद, आईना मोहम्मद, लोगों मुझे मोहम्मद का पता बता दो, लोगों मैं मोहम्मद से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। लोग कहते हैं, वहां की यहूदी उलमा कहते हैं, अरे शख्स तू किस नबी का, किस शख्स का नाम ले रहा है? फकत दाब, वो तो झूठा है, तू किस शख्स का नाम ले रहा है? तू उससे हरगिज़ मुलाकात ना करना। चुनांचे ये उन यहूदी उलमा की बात पर ध्यान और तवज्जो नहीं देता, अपने घर के अंदर आया, थोड़ा दिमाग को लगाया कि आखिरकार ये उलमा ये झूठ ही हो सकते हैं, यहूदी ये जो लोग बोल रहे हैं यकीनन इनके झूठा होने में कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, लेकिन जिस नबी से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि जिसके नाम इतने आए यकीनन वो अल्लाह का प्यारा है, मुझे उस नबी से मुलाकात के लिए निकलना चाहिए। उस यहूदी ने इरादा बनाया कि मैं मदीना मुनव्वरा के अंदर चला जाऊं। वो यहूदी ऊंट लेता है, ऊंट पर सवार होता है और वो यहूदी मदीना मुनव्वरा के सफर के इरादे से निकल पड़ता है। वो यहूदी कि जिसके अंदर नबी की मोहब्बत अब उतरती जा रही थी, जिसके सीने के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उतरती जा रही थी, जिसके सीने में आका की मोहब्बत नाजिल होती उतरती जा रही थी, वो यहूदी ऊंट पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की जानिब चल रहा होता है। एक जगह पर उतरा, वो ठहरा कि थोड़ी देर मैं ठहर जाऊं, फिर दिमाग में एक ख्याल आया, मैं नहीं ठहर सकता, मैं तो अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए निकला हूं, मैं तो नबी अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए निकला हूं, मैं एक लम्हा भी नहीं रुक सकता, मैं एक कदम भी नहीं रुक सकता। फिर वो यहूदी भूखा हुआ प्यासा वो यहूदी अपने ऊंट पर सवार हुआ, मदीना मुनव्वरा की जानिब चल दिया। जब वो मदीना मुनव्वरा के अंदर एंट्री करता है, मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचता है, सामने से एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे होते हैं। हजरत सलमान फारसी को चूंकि आप खूबसूरत थे, जब हजरत सलमान फारसी को देखा वो शख्स समझा कि शायद यही मोहम्मद हैं, यही अल्लाह के रसूल हैं, यही अल्लाह के नबी हैं कि जिनको अल्लाह से इतनी मोहब्बत है। वो यहूदी आपसे कहता है, ए शख्स मुझे माफ कर देना, मैं आप पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार, आप पर माल कुर्बान करने के लिए तैयार। ए नबी, आप जिस चीज का मुझे हुक्म देंगे मैं आपको उस हुक्म को मानूंगा। हजरत सलमान फारसी, आपकी समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूं तो क्या करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। अब अगर मैं इससे ये कहूं कि जिनकी मुलाकात के लिए तू आया है, जिनकी मुलाकात के लिए तूने इतना लंबा सफर किया, अगर मैं इससे अभी बोलूं वो नबी फोत हुए 3 दिन हो गए हैं, ये अभी तड़पना लग जाएगा, मछली की तरह ये तड़पने शुरू हो जाएगा। इसलिए हजरत सलमान फारसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं करूं तो क्या करूं। आखिरकार आपने मस्जिद नबवी की जानिब इशारा करके उस यहूदी से कहा, आप उस मस्जिद के अंदर चले जाएं, आपको नबी का पता उस जगह पर मिल जाएगा। हजरत सलमान फारसी उन यहूदी के पीछे 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 चलते गए। वो यहूदी मस्जिद नबवी के अंदर जैसा घुसता है, एक आवाज देता है, जैसा कोई दीवाना आवाज दे रहा हो, जैसा कोई पागल आवाज दे रहा हो, जैसा कोई मजनू आवाज दे रहा हो, आईना मोहम्मद उहिब्बुहु, आईना मोहम्मद उहिब्बुहु, कहाँ है मोहम्मद जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, कहाँ है मोहम्मद जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। मस्जिद नबवी के अंदर दीगर सहाबा बैठे हुए थे, खामोश तारी थी, सब पर सुकूत छाया हुआ था, कोई चुप नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा था, सब खामोश थे और सबकी आंखों से आंसू जारी थे। हजरत अली खड़े हुए और उस यहूदी को दिलासा दिलाया और उस यहूदी से कहा कि ए शख्स, आप तशरीफ रखें, आप बैठें, आप जिस नबी से मुलाकात के लिए आए हैं, आप जिस नबी का दीदार करने के लिए, जिनसे मिलने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उन नबी का इंतकाल हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। रिवायत के अंदर आता है, तारीख की किताबों के अंदर आता है, वो यहूदी मछली की तरह तड़पने लग जाता है, उस यहूदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यहूदी दोनों घुटनों के बल नीचे बैठकर कहता है, इलाही क्या तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं है? इलाही क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं है कि मेरे आने से पहले तूने अपने महबूब को बुला लिया, अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। वो यहूदी रोता गया
और उसने मस्जिद नबवी के अंदर कहा, ठीक है वो नबी दुनिया से चले गए, उनका कोई कपड़ा तो होगा, कोई कमीज तो छोड़ कर गए होंगे, मुझे उस नबी की कमीज दिखा दीजिए, मैं उस नबी की कमीज की ज़ियारत करना चाहता हूँ। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला आपकी कमीज को मंगाते हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी के अंदर कमीज को लाया जाता है, रिवायत के अंदर आता है कि पूरी मस्जिद महक से मुअत्तर होनी शुरू हो जाती है, खुशबू से मुअत्तर हो गई। और वो यहूदी उस कपड़े को लेकर बोसा लेते हैं। आपकी आंखों के अंदर आंसू जारी थे और कहने लगे, ए सहाबा, मुझे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक पर ले जाओ। आपको दीगर सहाबा किराम, हजरत सलमान फारसी भी हैं, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी हैं, ये सहाबा किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक पर इन यहूदी को लेकर जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, मैं उन यहूदी के होठों को देख रहा था कि वो होठ हिल रहे थे, अंदर अंदर वो यहूदी कुछ बोल रहा था। आखिरकार उस यहूदी ने आसमान की जानिब हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगी, ए इलाही, ए रब्बा, अगर तूने मेरा इस्लाम कबूल कर लिया है, ए रब्बा, अगर तूने मेरा मुसलमान होना कबूल कर लिया है, मुझे इस नबी की कब्र के सामने अभी मौत दे दे। हजरत अली फरमाते हैं, मैं देख रहा था अभी उसकी दुआ अभी पूरी नहीं हुई थी, वो दोनों घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हजरत अली कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करने वाले अपनी जिंदगी में बहुत कम देखे। उस यहूदी के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कैसे उठी। मुल्क शाम का सफर किया और भूखा प्यासा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए, आपकी मुलाकात के लिए निकल गया। तो जिसको नबी से मोहब्बत होगी, उनके तरीके से भी मोहब्बत करेगा, उनकी अदा से भी मोहब्बत करेगा, फिर वो गाना नहीं सुनेगा, फिर वो अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मनाएगा, फिर वो फूलों से गैर महरम औरतें फिर गैर महरम मर्दों का बारात में स्वागत नहीं करेंगे, उनका वेलकम नहीं करेंगे। अगर नबी से मोहब्बत होगी, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन चीजों से मना करते हैं, फंतहू, वो यकीनन उन बातों से रुकेंगे। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हो गई। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला मुल्क शाम चले गए। एक जमाना हो गया आपको रहते रहते। आखिरकार एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। ए बिलाल, आप हमारा शहर छोड़कर चले गए, क्या बात है, आप हमारे शहर वापस नहीं आ रहे? ए बिलाल, आप हमारा शहर छोड़कर चले गए, क्या बात है, आप हमारे शहर वापस नहीं आ रहे? हजरत बिलाल हबशी को नींद नहीं आई। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला उसी वक्त उठे, आपने अपने कपड़ों को तैयार किया और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीना मुनव्वरा की जानिब चल दिए। बीवी पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो? बस मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ। आप वहां पर पहुंचे। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अंदर आप तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मिलकर खुश हुए, दीगर सहाबा किराम आपसे मुलाकात करके खुश हुए, लेकिन एक दरख्वास्त भी कर दी, एक फरमाइश भी आपके सामने अर्ज कर दी। ए बिलाल, एक जमाना हो गया, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौर की अजान सुना दीजिए। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझसे अजान के लिए ना कहें, मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे आका की याद आ जाएगी, मुझसे अजान के लिए ना बोलें। हजरत उमर ने कहा, हजरत उस्मान ने कहा, हजरत अली मुर्तजा ने कहा, आपने मना कर दिया, मुझसे अजान के लिए ना कहो, मुझसे रहा नहीं जाएगा, आका की याद ताजा हो जाएगी। इतने में हसन हुसैन भी आ गए। हसन हुसैन ने कहा, ए बिलाल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की अजान सुना दीजिए। हजरत बिलाल हबशी ने उनके कहने को रद्द नहीं किया। क्यों रद्द कर सकते थे? वो हसन हुसैन कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे के अंदर जाते थे, आपकी कमर पर लेट जाते थे। आप उनके हुक्म को कैसे ठुकरा सकते थे कि आप एक यहाँ पर बिठा लिया करते थे, एक यहाँ पर बिठा लिया करते थे और कहते थे, ए हसन हुसैन, मैं तुम्हारा घोड़ा हूं, जिनके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह खेलते हो, जिनको अपने कंधों पर बिठाकर बाहर ले जाते हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे इतनी मोहब्बत करते हो, क्या बिलाल हबशी उनके कहने को ठुकरा सकते थे? फौरन आप अपने कानों के अंदर उंगलियां देते हैं और आप जैसी अजान देनी शुरू करते हैं, अजान के कलिमात आपने कहे, पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर एक कोहराम बपा था। औरतें घरों से बाहर निकल गई। बल्कि रिवायत के अंदर आता है कि औरतें जब रो रही थी, आंखों से आंसू जारी थे। एक औरत की गोद में एक बच्चा था। वो औरत से अपनी माँ से कह रहा था, अम्मा जान, बिलाल हबशी तो आ गए,
जो आप अलैहिस्सलाम के दौर की अजान है वो सुना रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाएंगे, अम्मा आका कब आएंगे। इस मदीना मुनव्वरा के अंदर माँ मछली की तरह तड़पने लग गई, बेटा आका तो अल्लाह को प्यार हो चुके हैं। जब बेटे ने ये तड़पते हुए जुमले कहे, माँ से रहा नहीं गया। आखिरकार हजरत बिलाल हबशी अजान दे रहे थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे, आप फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। आप अलैहिस्सलाम की याद आ गई। ये है मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम की। और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर कूट कूट कर भरी उठती। आपकी अदा से मोहब्बत की, आपके तरीके से मोहब्बत की, आपकी सुन्नतों को उन्होंने आंखों से लगा। और हम आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाले कि जिन्होंने इस उम्मत के गम को इतना उठाया कि जब मलकुल मौत वफात के वक्त आपके पास आए, आपकी रूह कब्ज करने के लिए, और कहा कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया है। हजरत मलकुल मौत से आपने कह दिया, ए मलकुल मौत, पहले आप अल्लाह से ये कहो कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। आप अलैहिस्सलाम के पास फिर दोबारा वो मलकुल मौत अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं कि हाँ, अल्लाह ने ये कहा है कि हम आपके बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आपकी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई तब हुक्म दिया, अब मेरी रूह कब्ज कर दो। और फिर रूह कब्ज करते वक्त कहा कि ए मलकुल मौत, कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत के साथ सकरात के वक्त जो सख्तियां होती हैं उसका कुछ हिस्सा मुझे मोहम्मद को दे दो, मैं ही मोहम्मद बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना होने पाए। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, लेकिन तरीके हमने यहूदियों के, ईसाइयों के तरीके अपना रखी। निकाह शादी देखें तो गैरों के शादी और अपनी शादियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। सिर्फ एक फर्क नजर आता है, वो है निकाह। सिर्फ निकाह का फर्क है, बाकी जो रसूम वो गैर मुस्लिम अपना रहे हैं, वही रसूमात और खुराफात आज के हमारे मुस्लिम भाई अपना रहे हैं। वही रसूमात, सिर्फ एक निकाह का फर्क है, सिर्फ निकाह, बाकी तमाम रसूमात वही हैं जो गैर मुस्लिम लोग अपना रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बल्कि एक अजीब रस्म, जिस दिन लड़की को या लड़के को हल्दी लगती है, तमाम कपड़े हल्दी कलर के पहनते हैं। यह अजीब एक रस्म, ये तो शायद कुछ ही सालों से सुनने में आ रही है। हल्दी जैसे कपड़े सभी ने पहन रखे हैं। बताओ आप अलैहिस्सलाम को हम क्या चेहरा दिखाएंगे? क्या हम हकदार बनेंगे कि हम नबी अलैहिस्सलाम की शफात, हम नबी अलैहिस्सलाम की शफात के हकदार होंगे? जिन नबी की सुन्नतों को हम दिन रात हम जिबा कर रहे हैं। बल्कि आजकल के ये शादी हाल बाजार, अगर ये बात कहूं कि ये मजबा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मजबा बन चुके हैं तो कोई बाइद नहीं। मजबा कहते जिबा करने की जगह, आपकी सुन्नत की ये मजबा बन चुकी है शादी हाल बाजार। लेकिन हमें अफसोस नहीं है कि जिस नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता दिया, हम उन नबी की सुन्नतों को तोड़ते हैं, उन नबी की सुन्नतों को मिटाते हैं। इसलिए मेरे भाई, सच्चा आशिक वो है जो आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करे, आपके तरीके से मोहब्बत करेगा, वो सच्चा आशिक। सच्चा आशिक वही है जिसकी जिंदगी के अंदर आका की मोहब्बत है, आका का तरीका, जिसके घर के अंदर आका का तरीका, आका की मोहब्बत, वो सच्चा आशिक रसूल है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, बुढ़ापा है, आपकी आंखों में मोतिया आ गया, बीनाई चली गई, सोते वक्त सुरमा लगाया करते थे। किसी ने पूछा, आपकी आंखों में बीनाई तो है नहीं। लोग जो सुरमा लगाया जाता है इसलिए ताकि आंख की बीनाई ठीक रहे या आंख की बीनाई बढ़े। आपकी आंख की बीनाई चली गई, आप सुरमा लगा रहे हैं। तो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई उस आशिक रसूल का जवाब पानी पर नहीं बल्कि पत्थर की लकीर, वो जवाब देते हैं कि लोग चाहे आंखों की बीनाई के लिए सुरमा लगाएं, मेरे आका की सुन्नत है आप हर रात सलासतन फी हादी व सलासतन फी हादी, आप अलैहिस्सलाम हर रात 3 सलाई सीधी आंख में, 3 सलाई उल्टी आंख में लगाया करते थे। लिहाजा मैं तो सुन्नत पर अमल करने के लिए ये कर रहा हूं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके खिलाफ पुलिस पीछे लग गई जब फिरंगियों का यहां दौर था। उस दौर के अंदर आपको पकड़ने के लिए पीछे पुलिस लग गई। आप 3 दिन की बंद रहे, 3 दिन के बाद आप बाहर निकल कर आ गए। लोगों ने कहा, हजरत
अभी पुलिस इसी इलाके के अंदर है, आप छुप जाइए। तो आपने कहा गारे सोर के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन ही छुपे थे, लिहाजा मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता हूं। अगर मुझे आज कल परसों अगर मुझे पुलिस पकड़ेगी तो मेरी जान हाजिर है। हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मदीना मुनव्वरा के अंदर देखा कि आप नंगे पांव चल रहे हैं और आप चूंकि नाजुक बदन थे, आपके कदम मुबारक से खून रस रहा है। किसी ने पूछा हजरत जूते पहन लीजिए, तो कहा जूते तो पहन लेता, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये वो दियार है, इस दियार के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक पड़े हैं, कासिम के ये मजाल नहीं कि आपके कदम पर मैं अपने जूतों को रखूं। किसी ने सब्ज रंग का आपको जूता गिफ्ट किया और उस वक्त वो हरा रंग का जूता बड़ा आलीशान था, बड़ा कीमती था। लोगों ने कहा, चूंकि आपने पहना नहीं रख दिया, लोगों ने खूब कहा जरा पहन लीजिए, जो आपको हदिये में आया है, बड़ा आलीशान कीमती जूता है। तो कहा दिल ने भी चाहा था मैं पहन लेता, लेकिन गुंबद खजरा का रंग हरा है, मैं गुंबद खजरा रंग वाला जूता अपने पाँव में नहीं डाल सकता। यह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से आपसे मोहब्बत करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शुरू में भी मैंने इस बात को कहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुमने कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे, अपनी जान से, औलाद से, दुनिया से ज्यादा मोहब्बत ना हो जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी सुन्नतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।